Hello, Maturiman. You're watching Haryana Live on Onbill TV. A female police officer was arrested by the vigilance team for allegedly accepting a bribe at the model police station Kurukshetra on Saturday. Assistant Sub-Inspector Sharmila Malik was caught red-handed while accepting Rs 33,000 from a complainant in connection with a marital dispute case. According to the Vigilance Department, the complaint was filed by Navdeep Singh, who alleged that the officer had demanded Rs 50,000 to avoid falsely implications his brother in a case. The amount was later negotiated to 35,000, of which 2,000 had been paid earlier, while the remaining 33,000 was handed over during the trap operation. Acting on the complaint, a team from the Haryana State Vigilance Bureau reached Kurukshetra and arrested the officer near the court premises while she was accepting the remaining cash. Officials said further legal proceedings in the case are underway. Meanwhile, the accused officer allegedly tried to assault journalists when they attempted to record visuals after her arrest. जी सर क्या कहना चाहेंगे सर यहाँ पर केस दिखाने करने को? आज हम कुरुक्षेत्र आए थे अपने अम्बाला से किसी कार्य सरकार में, तो यहाँ पे हमारे मुझे फ़ोन आया एक कंप्लेनेंट का। तो कंप्लेनेंट आके यहाँ शरीफगढ़ से कंप्लेनेंट है, वो आके उसने बताया कि भाई ऐसा वो है, क्या नाम, एक किसी कंप्लेंट में उसके भाई के खिलाफ कंप्लेंट है कोई, और वो उसकी मिसेज के पक्ष से वो है। तो उसमें ये जो है अपनी इनका ASI लेडी है, इन्होंने शर्मिला मलिक ने, इसने 50,000 रुपये मांगे थे, जिसमें 35,000 की इनकी आपसी वो हुई थी कि 35,000 दे देंगे, जिसमें 2,000 उसी टाइम दे दिए थे और बाकी 33,000 रुपये में आज हमने रंगे हाथ को इसको पकड़ा है। तो सर कौन कौन से नोट थे सर? ये 500 के सारे नोट थे, सभी 500 के नोट थे। कहाँ से सर पकड़ा गया? इनको हमने ये उसमें थे कोर्ट में पकड़ा था, कोर्ट में के पास। आपका शुभ नाम? राजेश कुमार, इंस्पेक्टर राजेश कुमार, अम्बाला से विजिलेंस से हूँ जी। जी सर, क्या बात हुई है सर यहाँ पर? सर मेरे ब्रदर की 2024 15 सितंबर को शादी हुई थी ज्योति सर में। तो वो लड़की वालों का केस था, लड़की कोई 6 महीने लगभग रही है, उसके पिताजी यहाँ पे ले आए, उसकी कंप्लेन इन्होंने यहाँ पे की थी। सेक्शन 9 का हमने ऑलरेडी केस लगा रखा है। वो यहाँ पे पेपर देने आए थे भाई और उनकी फैमिली, साथ में हम भी आ गए। हम तो लोकल ही शरीफगढ़ से, ये बाहर से जलंधर फ्लोर से। तो इनको डरा धमका के मैडम इनको डरा रही थी, बोल रही थी FIR कर दूंगी, 50,000 रुपये दे दो। तो साथ में हम भी आ गए। तो बात हमारी फाइनल हुई 35,000 रुपये। 2,000 तो इनको संडे को ही दे गए थे, 29 या 30 तारीख को जो भी आता है। तो फिर 2-3 दिन लगे हमें पेमेंट अरेंज करने में, इनको भी थोड़ा काम था अपना फैमिली के मैटर में। तो ये आज आए हैं। तो आज बार बार हमें मैसेज किया जा रही थी, फ़ोन किया जा रही थी, मैडम भी FIR कर दूंगी, पैसे दे दो, नहीं तो आपको भी अंदर करवाऊंगी, आपकी फैमिली को भी अंदर करवा दूंगी। हाँ जी, सब कुछ है, पर हम आप विजिलेंस को ही शो करेंगे, आपको नहीं देंगे। उनको दे दिए। शर्मिला मलिक, ASI शर्मिला मलिक। तो इससे पहले आपको बुलाया गया था पहले यहाँ पर? हाँ जी, संडे को आए थे, अभी जो लास्ट संडे था लास्ट मंथ का 29 को। तो आप कंप्लेनेंट है कि आपके ब्रदर कंप्लेनेंट? नहीं, कंप्लेनेंट तो मैं ही हूँ। आपका नाम? नवदीप सिंह। तो आज कितने पैसे दिए आपने? आज 33,000 दिए हैं। तो रेड हैंडेड पकड़े गए? हाँ जी, रेड हैंडेड। Ambala Police launched a special traffic enforcement drive across Ambala district, setting up 47 checkpoints and issuing challans to 686 motorists for violating helmet rules. Speaking to the media, Superintendent of Police Ajit Singh Shekhawat said most fatal accidents in the district involve two-wheeler riders, with deaths largely caused by head injuries. Address this, the police initiated a campaign promoting helmet use and road safety. Over the past 2 months, authorities have issued around 4,000 challans, organized awareness programs in schools, distributed helmets and conducted a helmet rally encouraging riders to follow traffic rules. During the latest 3-hour operation, nearly 400 police personnel were deployed at checkpoints across the district to enforce helmet compliance. Police officials said the campaign will continue with about 4,500 challans issued so far this year, 5 to 6 times higher than last year, as part of efforts to improve road safety and promote regular helmet use among two-wheeler riders. देखिए, अम्बाला के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या जो एक्सीडेंट के जो मौतें हो रही हैं,
उसमें सबसे बड़ा कारण है कि सर पे चोट लगने की, हेड इंजरीज में, जो कि 2 पहिया वाहन है, उनकी मौतें सबसे ज़्यादा हो रही है। इस चीज़ को, मौतों को कम करने के लिए हमने एक विशेष अभियान चलाया है। तो इस साल लगभग 2 महीनों में 4000 से ज़्यादा चालान किए गए। इसके अलावा भी जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। स्कूलों के अंदर जागरूकता अभियान, हेलमेट को बांटने का हेलमेट रैली निकाली गई, और साथ में लोगों को फूल भी बांटे गए हैं जो कि यातायात के नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक और अपना हमारा अभियान है जो कि एक विस्तृत तरीके से पूरे ज़िले में एक मैसेज देने के लिए 47 जगहों पे नाके लगा के, और हमारे लगभग 400 के आसपास जो कर्मचारी हैं, उन्होंने एक साथ ये 3 घंटे के लिए चेकिंग अभियान चलाया। और इस चेकिंग अभियान के दौरान 686 जो है हेलमेट के चालान किए गए हैं। इस मुहिम का मेन उद्देश्य है लोगों को हेलमेट लगाने के बारे में जागृत करना, और लोगों को ये बताना कि जो हेलमेट लगाना है वो आपकी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए है। केवल चालान का डर नहीं है, परंतु चालान करके हमने उनको हमारी तरफ से एक निर्देश दिए हैं, दिया है कि हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपका चालान होगा। और हमारा उद्देश्य ये है कि अम्बाला वासी इस साल के अंत तक हर आदमी जो भी 2 व्हीलर पे जा रहा हो वो हेलमेट जरूर लगाए। साल में अब तक कितने चालान किए गए और पिछले साल? इस अभियान के दौरान इस अभियान के उपरांत हमारे लगभग 4500 से ज़्यादा चालान इस साल अभी तक हो चुके हैं 3 महीने में, और पिछले साल की अपेक्षा इसमें 5 से 6 गुना की वृद्धि हमने की है। और हमारा ये अभियान लगातार आगे जारी रहेगा, और ये हमारा उद्देश्य है कि जैसे बड़े महानगरों में सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करते हैं और हेलमेट लगाते हैं, उसी तरह से अम्बाला वासी भी, हर आदमी जो 2 व्हीलर पे जा रहा है, हेलमेट जरूर लगाए। A special blood donation camp was organized on Friday at Chaudhry Bansi Lal Civil Hospital to mark the wedding anniversary of social worker Manish Verma. The camp was organized by the Sahara Charitable Trust as part of its ongoing humanitarian initiatives. Chief Medical Officer Dr. Raghubir Sandhya inaugurated the camp and encouraged people to donate blood, describing it as one of the greatest acts of service to humanity. Blood Bank in charge Dr. Harsh also urged you to donate blood regularly to help save lives. The event was presided over by veteran blood donor Rajesh Tudeda. According to Jagdish Mittal, the camp was the Trust's 23rd blood donation drive. A total of 23 donors participated in the camp and all were honored with certificates and mementos for their contribution. आज का रक्तदान कैंप सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मनीष वर्मा जी की सालगिरह के ऊपर किया गया है। सबसे पहले तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, और बाकी लोगों से भी अनुग्रह करती हूँ कि और अनुरोध पूर्वक कि वो लोग भी आगे ऐसा कोई ओकेजन आए, कोई सालगिरह आती है, कोई जन्मदिन आता है या कोई पुण्यतिथि होती है, तो ये धर्म का काम करने का कष्ट करें। रक्तदान से किस तरह से देख रहे हैं लोगों की जान बचाई जा रही है, खासकर एक्सीडेंटल गर्भवती महिलाओं की सहयोग करता है। रक्तदान एक बहुत ही नेक काम है। इससे सिर्फ एक्सीडेंटल या गर्भवती महिलाओं की नहीं, जैसे हमारे कैंसर के पेशेंट होते हैं, आज भी हमारे भारत देश में बहुत से एनीमिया के पेशेंट होते हैं, तो इस तरह थैलेसीमिया के बच्चे हैं, बाकी काफ़ी तरह के लोग होते हैं जिनकी हम जान बचाते हैं। एक यूनिट से हम मिनिमम 4 लोगों की जान बचा लेते हैं, क्योंकि उसके हम 4 कंपोनेंट अलग अलग बना लेते हैं। लोगों में धारणाएं हैं रक्तदान करने से कमजोरी आती है, बहुत से लोग इसलिए आगे भी नहीं बढ़ते। नहीं, रक्तदान करने से ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही तो आपके शरीर में कमजोरी आती, बल्कि आपकी जो ब्लड को बनने की जो प्रक्रिया होती है वो और तेज हो जाती है। ये आपको काफ़ी बीमारियों से भी बचाता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया। रेगुलर आपका चेकअप भी हो जाता है। आप अगर अपना एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हो तो आपके सारे टेस्ट, मैक्सिमम जो टेस्ट होते हैं वो हम लगाते हैं उस यूनिट पे, तो आपको एक फ्रीली आपका बॉडी चेकअप भी हो जाता है। अगर कुछ आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं उसके लिए। रक्तदान करने के लिए मनुष्य अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले तो अगर 50 साल के बाद अगर वो ओल्ड एज है तो फर्स्ट टाइम नहीं दे पाएगा। अंडरवेट बंदा नहीं दे पाएगा, जैसे 45 kg से नीचे ब्लड है तो वो नहीं दे पाएगा। अगर उसको कोई क्रोनिक बीमारी चल रही है, वो मेडिकेशन पे है, या उसकी अभी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, या रिसेंटली कोई 2-3 दिन से एंटीबायोटिक ले रहा है, या 24 घंटे में अल्कोहल वगैरह लिया है, तो वो भी नहीं दे पाता। इस तरह काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं जिसमें वो नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में हम नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे, रक्तदान के महीने किस तरह से बढ़ सकता है?
मैं आम नागरिकों से यही अपील करना चाहूँगी कि जब वो पूर्णतः स्वस्थ हों तो वो कभी भी आके किसी भी समय आके हमारे यहाँ पे 24 घंटे में 7 वर्किंग रहता है ब्लड बैंक, आके वो लोग अपना ब्लड डोनेट करें। उससे उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारे ज़िले में भी काफ़ी ठीक रहेगा शरीर। सॉरी, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष कुमार। आज रक्तवीर मनीष वर्मा जी की सालगिरह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में युवा रक्तदान कर पुण्य के भागी बन रही हैं। मैं सभी शहरवासियों से प्रार्थना करूंगा कि अब मौसम बदल रहा है, गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे समय में रक्त की जरूरत पड़ती है, खासकर गर्भवती महिलाओं, थैलेसीमिया पेशेंट और एक्सीडेंट केसेस के लिए। तो रक्तदान से संबंधित सूचना मिलते ही आप आएँ। 9 से 1 बजे तक ब्लड बैंक खुला रहता है, आकर रक्तदान करो और पुण्य के भागी बने। किस तरह से रक्तदान किया जा रहा है, कितने रक्तदाता लगातार पहुंच रहे हैं? अभी तक 20 के करीब रक्तदाताओं ने रक्तदान कर लिया है, अन्य रक्तदाताओं का आना जारी है। सर, रक्तदान को लेकर के किसी से देखा महादान की भी बाजी में है, किस तरह से लोगों की जीवन बचाने में कारगर? रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 4 व्यक्तियों की जान बचती है, और जो आदमी रक्तदान करता है उसकी टेस्टिंग होती है। अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो उसको सूचना दी जाती है, तो एक के साथ साथ 5 आदमियों को इसका फायदा मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि रक्तदान करें और अपनी स्वास्थ्य की जांच भी इस बहाने से कराएं और पुण्य के भागी बने। कितने वर्षों से आप रक्तदान की मुहिम को बढ़ा रहे हैं? मैं 1994 से रक्तदान की मुहिम में लगा हुआ हूँ। हम सालगिरह, पुण्यतिथि, रस्म पगड़ी पर रक्तदान शिविर लगवाते हैं, ताकि इसलिए लगवाते हैं कि लोग रक्तदान के प्रति जो भ्रांति है, उनका शंका है, वो दूर हो और रक्तदान कर अपने आप को स्वस्थ साबित करें। An 11th grade student from a government school in Theoda village has developed an LPG safety sensor device aimed at preventing accidents caused by gas leaks. The project, created by student Ravindra Kumar, has earned recognition at the national level. The device is designed to detect gas leaks and immediately trigger an alarm while sending alerts via phone, call and text message. It can also cut off the power supply within seconds and automatically activate a sprinkler and exhaust system if gas concentration increases. Ravindra, who comes from a modest background, said he spent 3 to 4 months developing the device after being inspired by a gas leak incident at a cold storage facility in Shabat. During a ceremony at the village school, local MLA Ramkaran Kala honored the student and his teachers for the achievement. According to Block Education Officer Vijendra Singh, the project secured first place in the national level competition featuring participants from 6 states, bringing recognition to the state of Haryana. पहले सर हम ब्लॉक लेवल पे गए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट और फिर नेशनल पे गए। वहाँ पर अपना मॉडल, हमारा जो मॉडल है, फर्स्ट आया। वहाँ गया, गांव से गया था और वहाँ पर प्राइवेट स्कूल के भी स्टूडेंट आए थे। वहाँ पर हमने जब ये मॉडल एक्सप्लेन किया तब हमको लगा नहीं था कि हमारी पोजीशन आएगी। हम रिलैक्स थे बिल्कुल, और जब हमारी फर्स्ट प्राइज अनाउंस हुआ तो हमको बहुत खुशी हुई कि हमारा फर्स्ट प्राइज आया। सर, मेरा नाम रविंद्र है, मैं गाँव त्योड़ा से हूँ, ब्लॉक शाहबाद और डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे छात्र रविंदर ने, उनके मार्गदर्शक राजेश कुमार जी जो पीजीटी फिजिक्स हैं, पूरी की पूरी साइंस टीम, डॉक्टर अंकिता, संजय जी, इस बच्चे ने एक प्रोजेक्ट बनाया जो एलपीजी सेफ्टी प्रोजेक्ट, जो सेंसर बेस्ड है। जो खतरे निरंतर हम देखते हैं कि एलपीजी लीकेज की वजह से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, इसने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है कि वो हादसे को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से टाला जा सकता है। सेंसर आपको बीप देगा, एसएमएस आएगा आपके मोबाइल पे, और जैसे ही किसी जगह पर एलपीजी का लेवल बढ़ जाता है तो एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट फैन और स्प्रिंकलर, एग्जॉस्ट फैन उसको एग्जॉस्ट करेगा जो एलपीजी है, और स्प्रिंकलर उसको खतरे को ख़त्म कर देगा। ऐसा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हमारा नेशनल लेवल पर गया। नेशनल लेवल में जो पार्टिसिपेंट थे वो 5 स्टेट थे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जे&के। उन 5 प्रोजेक्टों के अंदर बड़ा हर्ष का विषय ये है कि एक ग्रामीण परियांचल से सरकारी स्कूल का छात्र और इनके मार्गदर्शक, इनकी मेहनत ने इतना नाम रोशन किया है इस विद्यालय का, शिक्षा जगत का। हमारे ज़िला के अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और गांव के सभी लोग इस बात के लिए हर्षोल्लाहित हैं कि इस बच्चे ने बहुत उपलब्धि प्राप्त की है अपने जो मार्गदर्शक हैं इनके राजेश जी के माध्यम से। और इसमें जो ऑब्जर्वर थे, इसको जो प्रोजेक्ट को जज किया है, वो CSIR के साइंटिस्ट थे, बड़े ख्याति प्राप्त डायरेक्टर थे।
और बड़े लर्नेड और रिनाउंड साइंटिस्ट उन्होंने इतनी तारीफ़ की है इस प्रोजेक्ट की कि ग्रामीण परियांचल से इस बच्चे का इस प्रकार का दृष्टिकोण रहा है, इस प्रकार का विजन रहा है। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, पूरे गांव के लिए, पूरे शिक्षा जगत के लिए और पूरे स्कूल के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की तरफ से हमें जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, जो मापदंड हैं, उन पर निरंतर हमारे को सहयोग मिलता रहता है और हम चाहेंगे कि इस प्रकार का सहयोग चलता रहे ताकि ऐसे जो यंग साइंटिस्ट हैं उनको प्रोत्साहन मिले, वो आगे बढ़े, उनके मन में हेजिटेशन ख़त्म हो और उनको पता लगे कि उनके अंदर जो छुपा हुआ हुनर है वो बाहर निकले। और इस प्रकार का जो उपलब्धि है जैसे हमारे इस बच्चे ने ली है, बाकी बच्चों के लिए भी ये प्रोत्साहन का एक विषय है। The visit of Haryana Agriculture Minister Shyam Singh Rana to Shahabad has drawn criticism after he reportedly skipped a visit to the local grain market and did not interact with farmers or commission agents. Despite this, the minister stated that procurement arrangements were functioning smoothly and that farmers were not facing any major issues. Rana said that Nayab Singh Saini had directed MLAs to visit mandis to review procurement operations and address grievances of farmers and RTS. However, critics questioned how the minister assessed the situation without inspecting the mandi during his visit. Speaking at a program organized by the Indian National Lok Dal, the minister maintained that the government was ready to resolve any complaints and that no major issues such as shortages of gunny bags or portal verification problems had been reported. एक एक दुकान पे मंडी में लाने की व्यवस्था, किसान अपनी फसल को ट्रैक्टर ट्राली के अतिरिक्त अन्य पारंपरिक साधनों जैसे बैलगाड़ी आदि जो ट्रकों के माध्यम से भी मंडी में ला सकते हैं। यदि ट्रैक्टर ट्राली पे नंबर प्लेट उपलब्ध नहीं है तो किसान ट्रैक्टर पर पेंट द्वारा पंजीकरण संख्या लिखकर अथवा कागज पेपर स्टिकर पर पंजीकरण संख्या अंकित कर मंडी में फसल ला सकता है। पंजीकरण संख्या उसकी जी अगर ट्रैक्टर पे नंबर नहीं है। दूसरा ये है भी गेट पास काटने की सुविधा, किसानों को फसल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मियों की तैनाती की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत इसमें जो मैं बोल रहा ना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत या उसका मालिक अथवा वह व्यक्ति जो भूमि का पट्टे पर लेकर खेती कर रहा हो। हाँ, इसके अलावा आप अपने आड़ती को भी जोड़ सकते हैं इसमें, भी कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी कर सकता है। किसान, भूमि मालिक, पट्टेदार किसान अपने नामित व्यक्तियों को भी पोर्टल पर पंजीकरण करा सकता है। और 3-4 आदमी के नाम पोर्टल पे दे दो, आड़ती का दे दो, अपना दे दो, मालिक है, ड्राइवर का दे दो। ठीक है, आपको ये लगे भी मेरा मंडी में तो ये जा रहा है। ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही लगभग हो गया। अच्छा, किसान स्वयं अथवा उसके द्वारा नियमित अधिकतम 3 व्यक्तियों की रबी फसल विक्रय हेतु मंडी में ला सकेंगे। किसान अथवा नामित व्यक्तियों से भी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। हो सकता है ये। और इसमें तो सीधी सी बात और कोई मैटसा ही रहता है। मंत्री जी, अपनी मंडी में 10 लाख कट्टे आने हैं, इनके पास 4.5 लाख कट्टे आ जाएंगे। वो तो क्या दिक्कत है, अब ये सीजन था, अब 10 दिन चलेगा। और थोड़ा सा मौसम की चकसाई रखियो, क्योंकि 5-4 दिन बादल चाल से बता रखी, उसमें अपना सांभ का रखियो। किसी आड़ती कोई समस्या हो बताओ ना जी, बस बाहर करने की और सब ठीक है जी। कोई किसान की समस्या हो? कोई नहीं जी, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया है। बोल रहे ये है आलू की पैड। तो आलू के बाद यहाँ सूरजमुखी लगती है, तो जो हमारा आलू है ना, जो उसमें किसानों को कुछ नहीं बचा, तो उसका भवंतर जो है ना जी, कुछ न कुछ और दिया जाए, क्योंकि किसान मरा पड़ा है। पावंतर की स्कीम चालू है। ठीक है, आप मंडी में उसका सरकारी तौर से बेच के जे फार्म आड़ती भरेगा, जिस रेट से भी क्या उसका भरेगा, बाकी सरकार दे देगी। ठीक है, 10 जनवरी बाद नहीं आए। 10 जनवरी तक तो पैसे आ चुके हैं बाहर के, उसके बाद नहीं आए। कोई नहीं आ जाएगा। बजट पता क्या था? ये बजट 31 मार्च के बाद नया आ जाएगा। अब इसमें सच पूछा ना, तनख्वाह भी आज में 5 तारीख ना आएगी, हाँ अभी 5-7 तारीख ना आ जाए, क्या दिक्कत है? हमारा आलू की दिक्कत है जी।
जो रह गया ना, किसी को कोई लोड करना था कि गेहूं की फसल उसकी औरत की उसने रह रही है, 2 दिन पोर्टल खुला रहेगा। आप उसको अपने बच्चे कुछ किसान भाई हैं, कनक का जी, हाँ कनक का दोबारा पंजीकरण खुला हुआ है, कोई रह गया रह रहा कोई तो उसमें हो जाएगा। तहसीलदार साहब सर कह रहे थे भी जो अपना वेरिफिकेशन रह गया लगभग 1000 किले का, पहले 0 कर दिया था, फिर नया आ गया। चलो कोई बात। हाँ जी, अब वो भी जल्दी से जल्दी कब तक हो जाएगा ये? सर कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक तक कर देंगे सर। नेक्स्ट वीक कर देंगे, अगले हफ्ते तक कर देंगे, हफ्ते तक हो जाएगा। कोई आ जाएगा मंडी, फिर वापस जाओ। ठीक है सर, ठीक है। देखिए मंडी में अब रबी का सीजन चालू हो रहा है, 1 अप्रैल से पर्चे चालू हो रही है और सरकार ने सारे प्रबंध कर रखे। तो जो पोर्टल पे वेरिफिकेशन की जो जानकारी लेने के लिए अब सारी मंडियों में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई सारे विधायक अपने अपने मंडियों में जरूर जाओ। मंडियों में किसान की, आड़ती की कोई सरकारी तौर से कोई दिक्कत है तो उसको सुन के उसको दूर कराओ। कोई बारदाने की कमी हो, कोई पोर्टल वेरिफिकेशन की कमी हो, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम जहाँ जहाँ भी गए तकरीबन सारी जगह काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम तो परमात्मा के हाथ में है और वो बाकी जो सरकार के जो हाथ में है वो सारा किसान के साथ है। मतलब जिस किसान के लिए तो इस बार सरकार चौकस है, टेंडर हो गया और मैं समझूंगा अभी हमारे जो यहाँ के एसडीओ साहब हैं, डीसी साहब हैं, वो इसकी गौर करेंगे और डिपार्टमेंट वाला जो परचेज कर रहा है जो एजेंसी, वो एजेंसी उठाने की भी प्रयास करें, उसको लगातार उठवाएं। कोई भी चीज़ है देखो सूख के रखी जाती है, जब हम गोदाम में स्टोर में रखेंगे तो उसका चेक करके उसकी नमी ना हो, खराब ना हो अनाज, क्योंकि अनाज तो 6 महीने में पैदा होता है। ये इसको सामना भी एक जरूरी है और वो सुखा के ही रखा जाता है। मैं समझता हूँ कि वैसे सूखा ही आता है, शुरू में 1-2 दिन की बात है, थोड़ा मौसम नरम सा है ये, नहीं तो गेहूं के सीजन में कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें कुछ भी नहीं है, एक 10 दुकानों पे ये किसका वो कर दिया, सिस्टम कर दिया, तो कोई भी कहीं करा सकता है। किसान मंडी में ले आके अब जिस टाइम वो बोली होगी उसी टाइम उसका वो हो जाएगा, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। या कांग्रेस हो, अगर वो कोई ऐसी कोई समस्या हमारे को बता दे, हम उसको दूर कर देंगे। जिन मांग पत्र में जितनी इनकी डिमांड है सारी पूरी कर देंगे। Meanwhile, Market Committee Chairman Kanuraj said the government was committed to procuring every grain produced by farmers and ensuring a smooth procurement process. However, the absence of a ground inspection or direct interaction with farmers during the visit has led opposition leaders and locals to question the purpose of the minister's trip. कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी का ये अपने ऑफिस में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्याम सिंह जी राणा जी ने आज मेरे ख्याल सारे कम से कम 15 मंडियाँ घूमे हैं और सरकार की जो नियम और नीति के अनुसार हमारे को भी मोटिवेट किया है, हमारे को भी आज चार्ज किया है और हमारे साथ खड़े हैं। हम वादा करते हैं भी किसी किसान को भी नायब सैनी जी की सरकार दिक्कत नहीं आने देंगे और हर एक का एक दाना खरीदा जाएगा। बायोमेट्रिक से घबराए ना, कोई पैनिक क्रिएट करता है उससे पैनिक ना क्रिएट कराएं। आप आए, खुल के आए, मंडियों में आए, तो दिक्कत है। ये ऑफिस राणा जी के निर्देश में ये चल रहा है, 24 घंटे एक्टिव है। तो राणा जी इस कार्य के लिए तो हमेशा से फेमस हैं। वो कोई भी मांग होती है, हमारी डिमांड होती है, उसको पूरा करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय कृषि मंत्री जी का और उनका इस ऑफिस में भी स्वागत करता हूं और शाहबाद हल्के के सभी किसानों की तरफ से, सभी आड़तियों की तरफ से स्वागत है। राणा जी किसी को बजट का मसला है, हमने अभी बंतर भरपाई की अपील भी की है और माननीय कृषि मंत्री जी ने 1 मिनट में मान ली है भी जैसे ही बजट आ जाएगा और शाहबाद हल्के में आलू की जो फसल की इस बार दुर्गति हुई है तो ये माननीय कृषि मंत्री जी और नायब सैनी जी इसको पूरा करने का काम करेंगे। ये हमारे को पूरी उम्मीद है। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.